السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن رہے ہیں سر عمر آسی کو۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں، بالکل سٹارٹ سے لے کر چلیں گے، جس میں قرآنک پیسیجز ہیں۔ تو ہماری کلاس کی خاصیت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر ہم اپنے کنٹینٹ کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سلیبس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پیپر ون کے اندر جو سب سے پہلے چیز پوچھی جاتی ہے وہ میجر تھیمز ہیں، اور میجر تھیم جو ہیں 3 ٹائپس پر ہیں: God in himself, God's relationship with the created world, God's messenger۔ ان تینوں ٹاپکس کے اندر 5 پیسیجز دیے گئے ہیں، اور ٹوٹل 15 پیسیجز ہوتے ہیں۔ اس کا ہم پاس پیپر پہ اگر نظر ڈالیں تو اس طریقے سے سوال آتا ہے کہ چوز یعنی 2 آف دا فالوئنگ پیسیجز فرام دا قرآن۔ تو کوئی بھی جو ہے، آپ کو 3 پیسیجز دیے ہوئے ہوں گے، جو آپ نے 15 پیسیجز پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی 2 پیسج کرنے ہوں گے، اور ایک پیسج کے 4 مارکس ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پیسج کے اندر آپ سے 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ س- سوال اے ہوگا کہ بریفلی ڈسکرائب دا مین تھیم ان ایچ پیسج۔ جو آپ کو عربک ٹیکسٹ دیا ہوا ہوگا اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہوگی، انگلش ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا، اور ساتھ میں قرآنک ریفرنسز بھی دینے ہوں گے۔ یہ ہو جائے گا 2 نمبر کا سوال۔ پھر اسی کوشچن نمبر 1 کا جو بی پارٹ ہوگا وہ آپ سے سوال کر رہا ہے: بریفلی ایکسپلین دا امپورٹنس آف دیز تھیمز ان اے مسلمز لائف ٹوڈے۔ کہ یہ تھیم جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آج کے زمانے میں ہم اپنے اوپر کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر اس تھیم کو پڑھنے کے بعد ہم کو کیا چیز سمجھ میں آئی کہ ہم کس طریقے سے اس پر ہماری زندگی پہ اثر انداز کر سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم پیسیجز کی طرف۔ پیسیج نمبر 1 آیت الکرسی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے آیت الکرسی کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ آیت الکرسی کہہ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: اللہ دیر از نو گاڈ وردی آف ورشپ۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو کہ عبادت کے لائق ہو، ایکسپٹ ہم سوائے اللہ کے، دا ایور لیونگ ہمیشہ زندہ رہنے والا، آل سسٹیننگ سب کو رزق دینے والا، نائدر ڈرومنی ڈراؤسینس نہ تو اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے، نور سلیپ اوور ٹیکس ہم نہ ہی نیند کا غلبہ اللہ کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ نہ ہی نیند آتی ہے۔ ٹو ہم بلونگس وٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ وٹ ایور از آن دا ارتھ۔ کہ رہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ سے تعلق ہے، یعنی کہ اللہ اس کے مالک ہیں۔ Who could possibly intercede with him without his permission؟ کون ہے کہ جو اللہ کے معاملات میں انٹرسیٹ کرے، مداخلت کرے اللہ کی پرمیشن کے بغیر؟ ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ fully knows what is ahead of them، کہ اللہ کے آگے کیا ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، and what is behind them، اور کیا جو ہے پیچھے ہے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بٹ نو ون کین grasp any of his knowledge، کوئی بھی اللہ کی نالج کا محاصرہ نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، یعنی کہ جو اللہ کی نالج ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، except what he wills to reveal، اللہ یہ کہ جس معلومات کو اللہ پبلک لوگوں کو دینا چاہیں، سو وہی معلومات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ his seat in encompasses the heaven and the earth، اللہ کی جو کرسی ہے encompasses مطلب اس نے گھیرا کیا ہوا ہے کس کا؟ جنت کا، جنت نہیں سوری، آسمان کا، اینڈ دا ارتھ اور زمین کا۔ مطلب اللہ کی ملکیت زمین آسمان ہر جگہ ہے، کرسی سے مراد اللہ کی کنگڈم ہے۔ اینڈ دا پرزرویشن آف دا بوتھ ڈز ناٹ ٹائر ہم، اور ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی نگہبانی یعنی کہ زمین کی اور آسمان کی، اللہ کو نہیں تھکاتی، یعنی کہ ہر وقت ان کو چلانا یہ کام اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ فور ہی از دا موسٹ ہائی دا گریٹسٹ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ اب مین تھیم پر آ جاتے ہیں۔ مین تھیم یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے جو ہے پوائنٹس کی شکل میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہوگا۔
पॉइंट नंबर 1 है आयतल कुर्सी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आयतल कुर्सी जो है अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात को बयान करती है। जब भी आप कोई पैसेज एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, कोई भी थीम आप एक्सप्लेन करेंगे, तो 2 से 3 लाइनों में पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाइए। डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन की तरफ मत जाइए। तो 1-2 लाइनों में इसकी एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन है कि अल्लाह ताला आयतल कुर्सी जो है अल्लाह ताला की मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है। डिस्क्राइब्स अल्लाह एज द क्रिएटर, चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। ये आयतल कुर्सी की जो वर्सेस हैं ये डिफाइन करती हैं कि अल्लाह ताला क्रिएटर भी हैं, मतलब पैदा करने वाले हैं, चेरिशर पालने वाले हैं, सस्टेनर रिस्क देने वाले हैं ऑफ द यूनिवर्स। इस कायनात के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, जानवर हों, जो कुछ हो, उन सबको रिस्क देने वाले हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। दिस पैसेज एक्सप्रेसेस यूनिटी। ये पैसेज जो है इत्तेहाद को डिफाइन करता है, ओमनी साइंस को डिफाइन करता है। ओमनी साइंस कहते हैं कि इल्मुल कुल, हर चीज हर चीज का इल्म होना, हर चीज का इल्म होना। और ओमनीपोटेंस कहते हैं कंप्लीट अथॉरिटी, यानी कि मुकम्मल पावर अल्लाह के पास है। अल्लाह इज इटर्नल सेल्फ जेनरेटिंग। अल्लाह जो है इटर्नल, हमेशा रहने वाले हैं। सेल्फ जेनरेटिंग, खुद ही अल्लाह ताला चीजों को जनरेट करते हैं। सेल्फ जनरेट का मतलब यहाँ पे क्यों लिखा है, मतलब हम इंसान दुनिया में कुछ भी बनाते हैं तो किसी न किसी चीज को देखकर दिमाग में आइडिया आता है, जबकि अल्लाह ताला बगैर किसी सैंपल के चीजों को जनरेट करते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग, खुद ही जो है अल्लाह ताला जो है रिस्क देने वाले हैं। बीइंग डेट ही इज यूनिक। इन तमाम खूबियों में जो है अल्लाह ताला यूनिक है, मतलब ऐसी खूबियां और किसी के पास नहीं। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स। और अल्लाह ताला आज़ाद हैं इन तमाम कामों में, कोई पूछने वाला अल्लाह को नहीं है। अब फिर एक रेफरेंस की एक वर्स दी हुई है, ओ प्रॉफिट अल्लाह इज अलोन द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड ही इज द वन डोमिनेंट ओवर ऑल। ए नबी कह दीजिए अल्लाह एक हैं, अकेले हैं, एंड द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज को पैदा करने वाले हैं, एंड ही इज द वन डोमिनेंट ओवर ऑल। डोमिनेंट कहते हैं पावर का होना। अल्लाह ताला अकेले हैं जिनके पास पावर है ओवरऑल हर चीज के ऊपर। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। अल्लाह इज नॉट अफेक्टेड बाय स्लीप और रेस्ट और एनी डिग्री। मैंने आपको बताया था, ना ऊंग आती है ना आराम की जरूरत है अल्लाह ताला को किसी भी किस्म की। ही हैज टोटल अथॉरिटी ओवर ऑल क्रिएशन। सिंपल है, ही इज द मास्टर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। नो वन कैन इंटरसेड ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन विदाउट हिज परमिशन। इंटरसेड, मुदाखलत करना, यानी कि कोई भी अल्लाह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई भी अल्लाह की बारगाह में किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता विदाउट हिज परमिशन, अल्लाह की परमिशन के बगैर। एंड वेन दे आर ग्रांटेड सच परमिशन, और जब लोगों को परमिशन दी जाती है कि मतलब क्यामत के दिन किसी की सिफारिश कर लें, दे विल एक्ट विद इन लिमिट्स, तो वो हदूद के अंदर ही सिफारिश कर सकेंगे, यानी कि जितनी अथॉरिटी दी गई होगी इतना कर सकेंगे। अल्लाह हैज फुल एंड टोटल नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड द फ्यूचर। ही नोज वट एवर इज बिफोर एंड वट एवर इज बिहाइंड देम, एंड देयर नॉलेज कैन नॉट इनकम्पास हिम। ऊपर तो आसान है तर्जुमा इनकम्पास का, मैं बता देता हूँ कि इंसान की नॉलेज अल्लाह अल्लाह का इनकम्पास नहीं कर सकती, मतलब अल्लाह की नॉलेज तक नहीं पहुंच सकती। द वर्ड कुर्सी मीन्स, ये आ गया लफ्ज कुर्सी। कुर्सी मीन्स सीट और चेयर। कुर्सी का मतलब तो सीट या चेयर है, लेकिन ट्रांसलेटेड हेयर एज अ थ्रोन, यहाँ पे तख्त की तरफ इशारा है, मतलब अल्लाह की मिल्कियत, किंगडम की तरफ इशारा है कि अल्लाह मालिक हैं इस पूरी कायनात के। विच डिनोट रियल्म और सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह के तख्त और अल्लाह की बादशाहत की तरफ इशारा है। ही फील्स नो फटीग, एन नहीं है, सॉरी, नो है। इन गार्डिंग देम, अल्लाह ताला गार्डिंग देम मतलब इन चीज़ों की निगहबानी करने में, ज़मीन और आसमान की निगहबानी करना, इसकी सरपरस्ती करने में अल्लाह ताला थकन महसूस नहीं करते। इम्पोर्टेंस की तरफ आ जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस से मुराद, मतलब हम आज के ज़माने में, या हम एक मुसलमान आयतुल कुर्सी की वर्सेस को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। आयतुल कुर्सी अफर्म्स द फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ मुस्लिम टू वर्शिप नन बट अल्लाह। आयतुल कुर्सी जब हम पढ़ेंगे तो हमको हमारा जो बिलीव है, यकीन है, वो मजबूत होगा अल्लाह ताला के ऊपर, कि
اللہ کے अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। सेकंड है, इट्स मेन थीम हाईलाइट्स द अलर्टनेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इसका थीम जब पढ़ेंगे तो हमको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला कितने अलर्ट हैं, हर चीज की नॉलेज है अल्लाह ताला को। विच रिमाइंड्स मुस्लिम डेट देयर लॉर्ड लुक्स। इससे हमको पता चलता है, हमें याद दहानी होती है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें सुन रहे हैं। टू देयर एक्टिविटीज, हमारी सरगर्मियों को कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल। तो फिर लिहाजा इसका नतीजा नतीजा क्या निकलता है? हैंस मुस्लिम्स मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इनटू सिंफुल एक्टिविटीज। तो फिर मुसलमान अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। क्यों? जब उनको एहसास होगा कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर वो सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से बचेंगे। जैसे सच एज ब्राइबरी, रिश्वत लेना, चीटिंग, धोखा देना, एंड लुकिंग एंड सेइंग समथिंग फाउल, बुरा कहना, देखना थ्रू आउट देयर लाइफ्स, अपनी जिंदगियों में। एंड दे आर बीइंग वॉच बाय देयर क्रिएटर। जब उनको ये एहसास होगा कि भाई अल्लाह ताला देख रहे हैं। आयतुल कुर्सी emphasizes on the perfect kingdom of Allah। आयतुल कुर्सी हमें बताती है, जोर देती है कि अल्लाह ताला की किंगडम, बादशाहत परफेक्ट है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं। सो लिहाजा अ बिलीवर मस्ट नॉट बो डाउन और सरेंडर हिमसेल्फ। एक बिलीवर को, एक यकीन रखने वाले को, यानी कि एक मुसलमान को सरेंडर नहीं करना चाहिए, सर नहीं झुकाना चाहिए। किसके सामने? टायरेंट, किसी जालिम के सामने। और एनी वर्ल्डली पावर, या फिर दुनियावी ताकत के सामने, किसी ऐसे शख्स के सामने जिसके पास सिर्फ दुनियावी ताकत हो। एंड अनजस्ट अथॉरिटी, और किसी ऐसे बंदे के सामने हमें नहीं झुकना चाहिए जो कि इंसाफ करने वाला ना हो। तो ये पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, आप लोग जो है पैराग्राफ की शेप में लिखेंगे। यहाँ से आप पैराग्राफ बनाना शुरू करेंगे। पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लिखना आपने अपने अल्फाज में है। इतना सारा तो आप जाहिर सी बात है आप याद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आज की क्लास इख्तिताम पजीर हुई। इंशाल्लाह मजीद क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर्स भी इसी क्लास में अपलोड कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।